completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon. The era of unprofessional appearance is over. No more beardos. This is not about preventing women from serving. वेलकम बैक everybody. सत श्री अकाल. आज सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ उन्होंने वॉर डिपार्टमेंट को एड्रेस किया और काफी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज की. उन्होंने कहा कि वी फाइट वॉर्स टू विन, नॉट टू डिफेंड. We fight wars to win, not to defend. Defense is something you do all the time. It's inherently reactionary and can lead to overuse, overreach, and mission creep. War is something you do sparingly. उन्होंने सीधा आज अमेरिकन मिलिट्री की जो खामियां थी उस पर वार किया. उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की मिलिट्री को, अब चाहे आप नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं. Because this job is life or death. Standards must be met. And not just met, at every level we should seek to exceed the standard, to push the envelope, to compete. It's common sense. उन्होंने कहा कि ये जो जॉब है, दिस जॉब इज ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ. तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो मेट होने ही चाहिए. और उन्होंने इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ बेसिक्स बातों की बात की, जैसे मोटे ट्रूप्स, फैट ट्रूप्स. उन्होंने कहा कि हमें अपनी मिलिट्री में फैट लोग नहीं चाहिए. Out at combat formations or really any formation and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad, and it's not who we are. यार अमेरिका की जो इक्विपमेंट्स है आप देखो, आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, इतने तगड़े तगड़े ड्रोन चला रहे हैं, लेकिन जब उनके ऑफिसर्स देखते हो तो एकदम मोटे, एकदम फैट. तो उस चीज की वो जो खामी है अमेरिकन मिलिट्री में, उसको इन्होंने पकड़ा और टारगेट कर दिया है कि हमें अपनी मिलिट्री में फैट ट्रूप्स नहीं चाहिए. अब चाहे आप एडमिरल हो, जनरल हो, कमांडर हो या कोई और. Today, at my direction, every member of the joint force at every rank is required to take a PT test twice a year, as well as meet height and weight requirements twice a year. उसके बाद उन्होंने कहा नो बियर्डो, मतलब दाढ़ी वाड़ी, कैजुअल जो लाइफस्टाइल होता है. इन्होंने कहा कि हम सिविल नहीं हैं, हम ट्रूप्स हैं. वी आर वर्किंग इन मिलिट्री. तो ये जो बियर्ड वगैरह अगर आपको रखनी है तो आपको स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब आप रख सकते हो. This also means grooming standards. No more beards, long hair, superficial individual expression. We're going to cut our hair, shave our beards, and adhere to standards. Because it's like the broken windows theory of policing. It's like when you let the small stuff go, the big stuff eventually goes. So you have to address the small stuff. This is on duty, in the field, and in the rear. If you want a beard, you can join special forces. If not, then shave. इसके साथ साथ उन्होंने वुमेन के ऊपर भी जिस तरह का फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको स्ट्रिक्ट किया. उन्होंने कहा कि हमें लड़कियों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कियां भी वही फिजिकल स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करती हैं तो ही रिक्रूट की जाएंगी. मतलब हम मिलिट्री में उनको तभी रखेंगे अगर वो फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करेंगी. तो मेन एंड वुमेन इक्वल, एकदम प्रॉपर जो स्टैंडर्ड है वो अब से फॉलो होगा. Because war does not care if you're a man or a woman. Neither does the enemy. Nor does the weight of your rucksack, the size of an artillery round, or the body weight of a casualty on the battlefield who must be carried. This, and I want to be very clear about this, this is not about preventing women from serving. We very much value the impact of female troops. Our female officers and NCOs are the absolute best in the world. But when it comes to any job that requires physical power to perform in combat, those physical standards must be high and gender neutral. मतलब एक तरह से ये बोलते हैं एड्रेस करना अपनी मिलिट्री को कि भाई देखो बहुत हो गया आराम की जिंदगी, अब स्ट्रिक्टनेस आएगी. बेसिकली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वॉर तो नहीं होने वाली है आने वाले वक्त में. जिस तरह की एड्रेसिंग उन्होंने आज की है बड़े बड़े जनरल्स, एडमिरल्स को बुलाकर, और एकदम जो है वैसी प्रिपरेशन मतलब की बात की जैसे अब कोई कंट्री अगर वॉर पे जा रही है. वैसे तो अमेरिका हमेशा वॉर पे ही रहता है, वो तो अपनी कंट्री में नहीं बाकी कंट्रीज में. लेकिन ये एक ऐसा चेंज आज हमें देखने को मिला इनकी स्पीच पर, इनकी एड्रेसिंग में, कि मतलब उन्होंने सीधा कह दिया है कि वी आर प्रिपेयरिंग वॉरियर्स, नॉट डिफेंडर्स. We are preparing every day. We have to be prepared for war, not for defense. We're training warriors, not defenders. We fight wars to win, not to defend. उन्होंने कहा कि हम वॉर करते हैं जीतने के लिए, डिफेंड करने के लिए नहीं. और मतलब उनकी जो बात है उस पर दम भी बहुत है.
हो सकता है कि किसी को वो चीज़ अच्छी ना भी लगे कि यार इतना अच्छा अभी तक चल रहा था, अब आप ये चेंज क्यों ना, ये एक चेंज लाया जा रहा है ताकि मिलिट्री की तरह दिखे। अब आप खुद देखो कि एक तगड़ा ऑफिसर है, हो सकता है कि मेंटली बहुत तगड़ा है, अब फिजिकली फिट ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग पीटी हर दिन की जाएगी, एवरी ड्यूटी डे। Also, today, at my direction, every warrior across our joint force is required to do PT every duty day. ये पीटी कोई नॉर्मल योगा या स्ट्रेचिंग नहीं, प्रॉपर हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग की उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि हाइट एंड वेट जो स्टैंडर्ड है हर 2 साल में चेक किया जाएगा ट्रूप्स का, जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रूप्स सिविलियंस दिखें। सही बात भी है यार, अब जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करो तो उनके लोग लगने भी चाहिए कि हाँ भाई ये यार कोई मिलिट्री में काम करते हैं लोग, ये वो है, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो दाढ़ी है लंबे लंबे बाल, ये अब नहीं चलेंगे। तो इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मिलिट्री को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। मतलब हो गई है आज की एड्रेसिंग के बाद कि भाई हमें जो है कैजुअल बिहेवियर नहीं चाहिए, हमें वॉरियर्स चाहिए, डिफेंडर्स नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा कह दिया कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एवरी डे, मतलब हर दिन वॉर की तरह प्रिपेयर रहें। अब ये तो नहीं पता कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह की आज एड्रेसिंग थी तो मुझे तो लगता है एक बोलते हैं ना कि जज्बा, अपने ट्रूप्स के अंदर जज्बा लेकर आना कि भाई हर चीज के लिए रेडी रहें, उस तरह की स्पीच थी आज। और ऑब्वियसली यार अब एक दुनिया की एक ऐसी मिलिट्री जो नंबर 1 है, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी नंबर 1 होने चाहिए। मतलब दूर से लगना चाहिए कि हाँ भाई, अब देखो अगर कोई फैट ऑफिसर जा रहा है, मतलब दौड़ भी ना पाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये तो लड़ भी नहीं पाएगा। तो वही चीजें आज जो है सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ उन्होंने पॉइंट आउट की और एड्रेस किया। अब अमेरिका की मिलिट्री में प्रमोशंस भी मेरिट बेस्ड किए जाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन कोर्सेज, उस तरह की ट्रेनिंग को ज्यादा नहीं, फील्ड में जो फिजिकल ट्रेनिंग है या फिजिकली आप जब फील्ड में काम करते हो वो सब चीजें देखकर आपको प्रमोट किया जाएगा। और जो लोग भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाएंगे वो अमेरिका की मिलिट्री को छोड़कर जा सकते हैं, ये तक उन्होंने कहा। At the War Department, promotions across the Joint Force will be based on one thing: merit. Colorblind, gender-neutral, merit-based. The entire promotion process, including evaluations of warfighting capabilities, is being thoroughly re-examined. We've already done a lot in this area, but more changes are coming soon. We'll promote top-performing officers and NCOs faster and get rid of poor performers more quickly. Evaluations, education, and field exercises will become real evaluations, not box checks, for every one of us at every level. तो मतलब आज की जो एड्रेसिंग थी वो काफी ही, मैं बोलता हूँ, पावरफुल, विद स्ट्रॉन्ग वर्डिंग, और एकदम जो है मतलब अगर एक इंसान सोया हुआ ना उसको जगा देगी। इस तरह की एड्रेसिंग आज सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ उन्होंने की, अपनी मिलिट्री को एड्रेस किया, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। उन्होंने कहा कि 1947 में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया गया था और उसके बाद अमेरिका ने कोई खास जंगें जीती नहीं है, इसलिए हमने उस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में चेंज कर दिया है। और यार सही बात है, नाम मैटर करता है कि नहीं। अब एक नाम है शेर, एक नाम है चूहा, फर्क पड़ता है ना, तो नाम मैटर्स। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरह बना रहे हैं। बेसिकली आप हर दिन वॉर के लिए प्रिपेयर रहें। Finally, as President Trump rightly pointed out when he changed the department name, the United States has not won a major theater war since the name was changed to the Department of Defense in 1947. So, इस वक्त अमेरिका में जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हर डिपार्टमेंट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब चाहे वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट हो, या फिर काफी ओवरऑल। अब देखो आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रकिंग की बात कर लें, या फिर हम अब देखो जिस तरह से एविएशन में एक्सीडेंट्स हो रहे थे वहां पर चेंज, हर जगह अमेरिका में चेंज लाया जा रहा है। और चेंज तभी लाया जाता है जब एक चीज को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और वही इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। और चेंजेस बड़े फटाफट आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, एक होता है ना, एक गवर्नमेंट बोलती है कि हमें चेंज लाना है और चेंज दिखता नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज तो है कि चेंज दिखता है।
कि हाँ भाई हुआ है। इन्होंने कहा था कि बॉर्डर हम बंद करेंगे और हो गया है। 0 इनकाउंटर है पिछले 4 महीने में, 0 इनकाउंटर। और अगर हम पिछले सालों की बात करें तो मतलब एकदम जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। और बाकी तो ऑलरेडी चल ही रहा है कि जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जा रहा है, इवन जो है कुछ ज़्यादा भी कभी कभार हार्ड हो जाता है। जैसे आइस जो है अमेरिकन सिटीजन को भी लपेटे में ले लेती है। अभी मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें एक अमेरिकन सिटीजन ने $50 मिलियन का लॉसूट फाइल कर दिया है आइस के अगेंस्ट। तो बेसिकली अभी इस वक्त ना अमेरिका एक चेंज मोड में है, और साथ में हालात भी दुनिया के भी कुछ ऐसे बने हुए हैं। आज ऐसे जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को एड्रेस किया, दुनिया में हालात भी हैं। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की एड्रेसिंग आज थी तो मतलब कुछ ना कुछ तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। सो बाकी आप भी अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, कोई क्राइम ना करें अमेरिका में, क्योंकि इस वक्त क्रिमिनल्स के लिए तो बहुत दिक्कत है अमेरिका। अब मिलता हूं आपको ऐसे किसी इंडस्ट्री वीडियो में, देन चको फटे।